app, that is a Google site provided by the Google associated with Gmail. So next process is then same process, going on the email account, click on these 9 dots. After clicking on this dot, this is a triangular shape symbol, that is a drive shape. We are clicking on this drive and going to this my drive, and in this my drive there is option, that is new tab. Clicking on this new tab, this is a Google Slides. Okay, so clicking on this Google Slides, okay, this is the interface of Google Slide. And the main advantage of this Google as compared to Microsoft PowerPoint presentation is what? We can directly search anything without leaving the PowerPoint presentation or without leaving this Google Slide. So starts with the general settings of the Google Slide. This is the untitled presentation. You can write here the name of the slide, the name of the presentation. It is ICT. After that, we have similar options like in Microsoft PowerPoint presentation. This is a file option, this is edit option, this is view option, this is insert option. So in insert option, we have the image. You can insert the image from the computers or search from the web. We have the text box. Then we can also insert audio, video. These are different shapes, tables. For example, this is one by one, so we can insert like this. Then charts in the form of bar, columns, line charts, pie charts. And we can insert diagrams, word art. These are the lines formats. So this is the difference between the simple Microsoft PowerPoint and the Google Slides. That we have different types of inserts options. With the help of this, we can insert anything and we can design any animation. These are the special characters, animations, links. We can directly give the link of anything. After that, these are the formats, text, alignment, anything. Then slides. And here is the main option, that is theme. So we can choose the theme from this. Clicking on this, look at this is dark theme. This is streamline theme. This is simple light theme.
on both sides. Means अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो स्टूडेंट ने आंसर देना ही चाहिए. अगर हम हमारी स्लाइड या हमारा प्रेजेंटेशन इतना अगर इंटरेक्टिव है तो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आएगा और स्टूडेंट्स फिर खुद ब खुद इंटरेस्ट लेके क्वेश्चन भी पूछेगा और आंसर भी देगा वो. So that is more effective teaching as compared to this simple. So therefore, since I'm not going to tell you how to design the slides, क्योंकि वो स्लाइड्स तो आजकल सभी को पता है कि किस तरह मीन्स स्लाइड्स बनाए जाते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आई थिंक सभी को आता है. सो मीन्स स्लाइड्स तो दी है, लेकिन ये जो गूगल स्लाइड है, इस गूगल स्लाइड के साथ हम जो एड ऑन्स यूज कर रहे हैं उस एड ऑन्स किस तरह हम यूज करेंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस how we make our slide is more effective, more interactive. So आइए देखते हैं फिर कौन से एड-ऑन्स है जिसकी मदद से हम हमारी जो प्रेजेंटेशन है that makes more interactive. 1 minute में I'm stop sharing the screen. Interactive. So again, the add-ons. In the add-ons, this is Google Slides. I'm clicking on this. Screen is visible to all of you? Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay then. So these are the add-ons that is used for the Google Slide purpose. And the first add-on that is extension fonts. First of all, how we add these add-ons in the Google Slide. So there is an option. First of all, file, edit, view, insert, format, slide, arrange, tools, and add-ons. So on clicking these add-ons, I have this option that is get add-ons. So I'm clicking on this get add-ons. So we have this Google Workspace. Okay, so these are the add-ons for the Google Slides. That is automation forms, Adobe Create Cloud Box, Peer Deck. Look at this. This is Hyperteacher Create, Visit Chart, Mat Type. So these are the add-ons. So after clicking on any one add-on, you can install the add-ons for your use, and you can explore yourself. So now starts with the first add-on that is used for the slide. That is, this is extensions fonts. Means कितने fonts और कितने तरीके के fonts हम use कर सकते हैं, because in Google Slides there are limited fonts. So we have, with the help of this add-ons, we have many or lot of fonts that we used. So I'm clicking on this extensive fonts. इस extensive fonts के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे हम these are the all fonts and alphabeticals. So look at this. If I'm clicking on this, first of all, I'm selecting this. Click on this. That is, the font is changed. These are the different types of fonts. For example, this is change. Look at this, Google Slides. Now again,
This is this font. Therefore, this is change. This is admin of font. Look at this. This is change. So जो गूगल स्लाइड में जो फॉन्ट नहीं है वो फॉन्ट अगर हमें चाहिए, डिफरेंट फॉन्ट्स हमें अगर यूज करने हैं हमारे स्लाइड्स को इंटरेक्टिव बनाने के लिए और डेकोरेटिव बनाने के लिए, तो वी हैव दिस टाइप ऑफ द फॉन्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस X10 फॉन्ट्स एड ऑन, Altera stencil. विद द हेल्प ऑफ दिस हम हमारे स्लाइड्स को इंटरेक्टिव बना सकते हैं और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं और डिफरेंट फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ फॉन्ट सेक्शन, बट ये जो फॉन्ट्स है ये फॉन्ट्स इसमें नहीं है. जितने भी फॉन्ट्स हम मीन्स कोई अच्छी स्लाइड देखते हैं वेबसाइट में या मीन्स सर्च करते हैं अगर हम गूगल में, वो जो फॉन्ट्स होते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्लाइड में भी होने चाहिए. सो हम वो फॉन्ट्स विद द हेल्प ऑफ दिस एड ऑन हम हमारे स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं. दैट इज X10 फॉन्ट्स एड ऑन. Okay, this is the use of this add-on. After that, the next add-on is but the difference is what in slide and in forms we can directly insert the formula. We don't want to copy and then paste, or we don't want to copy URL and then paste. Here we can directly insert the formula, that is sine, for example this is cos, for example this is 10. So directly I can insert this. Look at this insert option. This is insert. This is directly inserted. It is we don't want to copy and paste option. This is cos 10. We can increase or decrease font size of this formula. Okay. Now the next add-on is icon for slides and docs. If I want to use the icons in my slides, the first thing in regarding today's environment is what? The issue is copyright. Means हर जगह copyright का issue है कि अगर हम कोई image लेते हैं, image लेने के बाद भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका CC कंटेंट देखना पड़ता है कि वो copyrighted है या नहीं है. Is it usable for professional means proper use or not, professional use or not, मीन्स हम फाइनेंशियली उसका यूज तो नहीं कर रहे हैं या उसके मदद से कुछ रेवेन्यू तो नहीं जनरेट कर रहे हैं. तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है रिगार्डिंग अगर हम कोई इमेज या कोई आइकॉन अगर यूज कर रहे हैं तो. सो दैट कॉपीराइट इशू इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस एड ऑन. दैट इज दिस आइकॉन फॉर स्लाइड्स एंड डॉक्स इज गिवन बाय Google's, that this is called as a flatty icons, that with the help of this we can insert any icons in our slides. For example, this is cup, so I insert this cup. This is click on this, then this is insert option. I just click on this. This cup is directly inserted here. This is the icon, and this is given by the Google, so there is no issue of the copyrights. So this add-on provides us lot of icons, and so for example, robot. Typing robot, click here, search. Look at this. These are the icons of the robots. So we can take any icon as per our use, as per our requirement. We can design our slide for the students. And the slides, if the pictures and the icons are more, then the slides will be more effective.
and the slides speaks more than you. And click on this. This is the insert option. Click on the insert option. सबसे बढ़िया यूज इसका यह है कि हमें कॉपीराइट जो इशू है वो देखने की जरूरत नहीं है कि वो इमेज या वो आइकॉन कॉपीराइटेड है या नहीं है, बिकॉज इट इज गिवन बाय ऑलरेडी गूगल, देयर इज नो इशू ऑफ द कॉपीराइट्स. सो दिस इज अनदर एड ऑन ऑफ Google that provide us for the slides. Now the next icon, add-on is this is a slide translator. So this slide translator means what? We can translate the slide in any language. For example, taking this text and use this slide translator. Let's slide translator this. Open this translate text box. We can translate this in, for example, Hindi, because that is we know translate. देखो कौन सा गूगल ऐप माइक्रोसॉफ्ट डॉक के समान है. तो विच गूगल ऐप इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट डॉक. तो जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में स्लाइड्स का ट्रांसलेशन हो जाएगा. मीन्स यू कैन डायरेक्टली इंसर्ट द सिंपल पीपीटी प्रेजेंटेशन इन दिस our slides, Google slides, and we can translate. अगर हमें वो नहीं समझ रहा है तो we can डायरेक्टली इंटरनेट से हम अगर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कॉपी करते हैं या डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद अगर हमें वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो वो डाउनलोड हुई कॉपी या वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वी कैन डायरेक्टली इंसर्ट इन द गूगल स्लाइड. गूगल स्लाइड में इंसर्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ दिस एड ऑन दैट इज ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट बॉक्स, हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश हम कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट बॉक्स और ट्रांसलेटर ऑप्शन और एड-ऑन्स. विद द हेल्प ऑफ दिस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मींस बहुत सारे लैंग्वेजेस दी है. चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, जापानीज, स्पेनिश, कोरियन, थाई. These are the options of languages in which language you want to convert or translate the text of the PPT. Okay. After that, the next add-on is Unsplash images. Again, these are for the icons. Now, these are the images. That is Unsplash images. This Unsplash images is again the same. Your copyrighted issue is solved. We can use the images. Look at this. This is free to use anything. For example, I'm writing here EART, Earth. So you can use these images. Free to use for commercial and personal purposes. यहाँ directly लिखा हुआ है कि we can use these images for the commercial and personal purpose. So commercial and personal purpose के लिए हम directly इसे use कर सकते हैं with the help of this add-on. So this is very important add-on as far as PowerPoint presentation is concerned and as far as copyright issue is concerned. Because if I want to take the image directly from the Google search, so I have to first means हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो इमेज जो है वो सीसी या कॉमन क्लॉज में बैठती है या नहीं है. अगर वो कमर्शियल यूज के लिए नहीं यूज है तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता. पर्सनल यूज के लिए वहां लिखा है नहीं तो नहीं. सो दैट्स व्हाई कि अगर हम मीन्स कोई बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन अगर दे रहे हैं या फॉर एग्जांपल अगर हमें वो प्रेजेंटेशन सपोज कोई सिंपोजिया या सेमिनार का प्रेजेंटेशन अगर हम दे रहे हैं और वो अगर इमेज हम कॉपीराइटेड इमेज यूज कर रहे हैं, so there should be the bad impact. So with the help of this Unsplash photos add-on हम कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. और यहाँ पे एक और यूज ऐसा है कि हम
ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम छोड़ के कहीं और सर्च करने नहीं जा रहे. वी कैन सर्च हियर ओनली एंड वी कैन डायरेक्टली ऐड द इमेजेस इन द our slides. So this is the best advantage of the Unsplash Photos add-on. We can increase and decrease the size of the Unsplash Photos. This is one of the best add-on. I think you have to write these add-ons. Now the slide. How the slide is effective. How we make the slide. Because कि अभी तक के तो सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ और आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं. तो नाउ अभी हम स्लाइड इस तरह बनाएंगे कि आपके रिस्पॉन्सेस भी आना चालू होंगे. तो वो किस तरह? अब आपके रिस्पॉन्सेस मीन्स जब जब आप वो स्लाइड डिजाइन करेंगे तो आपके स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेस आना चालू होंगे. सो विद द हेल्प ऑफ दिस एड-ऑन्स, द फर्स्ट एड-ऑन इज दैट इज स्लाइडो फॉर गूगल स्लाइड्स. ये एड-ऑन हमें ऐड करना है. ऐड करने के बाद जैसे वो हमारे एड-ऑन लिस्ट में फ्लैश होना चालू होगा, हमें उसे स्टार्ट करना है. तो नाउ द स्लाइडो फॉर द गूगल स्लाइड्स. दिस इज अ स्लाइडो add-on. This is more interactive add-ons. With the help of this, you can ask, look at this, you can ask multiple choice question in the classroom or at the time of teaching. You can ask open text questions. You can ask word cloud. Look at this. You can rate the lectures. You can ranking. You can perform the quiz with the help of this Slido. मीन्स क्विज मीन्स व्हाट मीन्स अगर हमें हमारे कॉलेज के तरफ से अगर कोई क्विज लेनी है, दैट इज ऑनलाइन क्विज कंडक्ट अगर करनी है, तो सबसे पहले ऑप्शन ये आते हैं कि गूगल फॉर्म में हमने फॉर्म डिजाइन कर दिया. फॉर्म डिजाइन करने के बाद हमने जो फॉर्म है वो सर्कुलेट कर दिया, लेकिन हम उसे मॉनिटर नहीं कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हमको स्टूडेंट्स को विद इन 1 आवर या विद इन 60 मिनट्स अगर हमने क्विज दी है, तो एट अ टाइम सबके रिस्पॉन्सेज आने. सपोज कॉलेज लेवल क्विज है या यूनिवर्सिटी लेवल क्विज है, तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, सबके रिस्पॉन्स आ जाते हैं. फिर कभी क्या होता है कि कोई ऑलरेडी अटेंड कर चुका होता है, वो स्टूडेंट उसे क्वेश्चन उसे आंसर्स बताने की कोशिश करता है, अगर वो सेम कॉलेज का अगर है तो इस तरह क्या होता है कि क्वेश्चंस ऑलरेडी मीन्स लास्ट आदमी मीन्स लास्ट स्टूडेंट तक जाने तक के वो क्वेश्चंस के आंसर सबको पता हो जाते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडो हम टाइम टू टाइम क्विज कंडक्ट कर सकते हैं और वो हमारे मीन्स हम हमारे हिसाब से उसके कंडक्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन कब आना चाहिए, वो क्वेश्चन कब आना चाहिए, और उस टाइम में उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी एट अ टाइम रिकॉर्ड होते रहते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन परफॉर्म द मीन्स कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल क्विज कॉन्टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडो. तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच गूगल ऐप इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स. So this is a options questions. Look at this. This is multiple choice question. यहाँ पे मैंने Google Docs, Google Slide, Google Site दिया हुआ है. This is the first question. And after that, this is second question. Which app of Google is related to Microsoft PowerPoint presentation? तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं. अगर आपको ऐड करने तो फॉर एग्जांपल मैं ये पहले स्लाइड में दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल ओपन टेक्स्ट, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ. ओपन टेक्स्ट closed, multiple choice, then तो नाउ अभी हम ये जो क्विज है, how you feel today, this is again a questions. Then after that, this is audience question and answers. Then how was the presentation? इस तरह के क्वेश्चंस है ये जो जहाँ जैसे कि ओपन टेक्स्ट, तो हम ये क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं और आपको जो क्वेश्चन लगता है वो क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं. ओके,
तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता हूँ। ये क्वेश्चंस जो है ये आपको स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। लुक एट दिस, रेड द टुडेज लेक्चर, देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AQR इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, तो ये सभी को पता है। नाउ लास्ट द क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज क्लास। ये इस तरह का कोई इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं विद इन योर क्वेश्चन। सो अभी हम इसे स्टूडेंट को किस तरह देते हैं, तो लुक एट दिस, दिस इज द ऑप्शन दैट इज द प्रेजेंट विद स्लाइडो। अगर हमने ये क्वेश्चन इंसर्ट कर दिए, क्वेश्चन इंसर्ट करने के बाद दिस इज प्रेजेंट विद स्लाइडो ऑप्शन। आई एम गोइंग हियर नाउ, दिस इज प्रेजेंट विद स्लाइडो ऑप्शन। गूगल से आपको लॉग इन करना है जब आप ये एड ऑन इंस्टॉल करते हैं तब, और इंस्टॉल करने के बाद जब आप प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट विद स्लाइडो, प्रेजेंट विद स्लाइडो मीन्स व्हाट। ओके देन these are the formalities that we completed. उसने हमारा एक्सेस मांगा था गूगल अकाउंट का, तो हमने दे चुके हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द गूगल स्लाइडो। गूगल स्लाइडो ओपन हो रहा है अभी। अब ये गूगल स्लाइडो जो ओपन हो रहा है, तो आपने सभी ने क्या करना है कि आप सभी ने गूगल सर्च में जाके slrdo.com डालना है। slrdo, सभी ने slrdo और slrdo.com में जाने के बाद 061827 ये कोड जो फ्लैश हो रहा है ये डालना है। फ्रेंड्स आप लोग करके देखिए, सर जो अभी बता रहे हैं ना, slido.com डालिए और उसमें वो कोड डालिए। Everyone should open the again next tab and type there slrdo.com, and then after opening that browser or opening the slide, you can insert that code, that is 061827. slrdo.com. आपने इंसर्ट करना है कोड 061827। यस सर, दैट क्वेश्चन इज विजिबल आफ्टर एडिंग कोड। और किसी ने करके Okay. देखा है पार्टिसिपेंट्स में से? Yes, ma'am. I madam. responded. यस LME यस। पण. Yes, Okay. ma'am. Question is So which visible. Google app is similar to Microsoft Docs? तो आपको आंसर देना है। अभी आंसर तो यहाँ फ्लैश हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी पार्टिसिपेंट ने इसके पहले दिया था। ओके, एखादा जन Can I गलत continue? आंसर भी दे के क्लिक करिए सो दैट यू कैन कम टू नो द डिफरेंस। गूगल साइट देके देखिए। यस, आई हैव रिस्पॉन्डेड गूगल साइट। यस, 2% इज देयर। 2%. I'm also responsible for Google site में। ओके। Okay, we are going to the next question.
which app of Google is related to Microsoft PowerPoint presentation? तो ओके, गूगल फॉर्म्स देके देखते हैं. Google Slide. Is it more interactive with students? So in this way means हम इस Yes, तरह sir, yes, स्लाइड sir. अगर बनाते हैं Yes, sir. तो स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं और स्टूडेंट भी एंगेज रहेंगे हमारे. So now write how you feel today. Look at this. This is a word cloud. तो जब हम ये हमारे सेमिनार हॉल में या बड़े स्क्रीन के ऊपर जब हम लेते हैं वो स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हमने जो लिखा है वो हमारे फ्लैश हो रहा है तो उनको बहुत अच्छा लगता है. तो राइट योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू फील टुडे. रिस्पॉन्सेस चालू हो रहा है, आ रहा है रिस्पॉन्सेस. हे ऍक्टिव्ह नाही सर. क्लिक करतोय मी. ऍक्टिव्ह सेंड करा सर, सेंड. You can edit your response also. क्वेश्चन दिसत आहे Your मला, Google पण Form. ते ऍक्टिव्ह होत नाही आणि सेंडचं ऑप्शन येत नाही. सर तुम्ही लिहा पहिले, नंतर सेंडचं ऑप्शन येईल. यस सर, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स दे रहे हैं आंसर. पाठवलं सर. यस सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Now this is next question. What is the need of add-on in slides? What is difference between Google Slides? सर these are open ended I think. Yeah, these are Yes, open-ended, madam. Yes. So after that, now how was the presentation? This is again same question. So like that, we can ask the questions. Now this is the quiz option. अब ये quiz option में आप अपना नाम लिख सकते हैं. Write your name in the quiz. Friends, देखिए सबके नाम दिख रहे हैं. जब स्टूडेंट अपना नाम देखेगा क्विज बड़े स्क्रीन के ऊपर तो वो बड़ा खुश होगा. Okay, now the quiz. This is only for the 10 seconds question, I think, and only one question. So this is the question: in which Shakespeare play will you find the suicide of Ophelia? देखिए, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो. जो ऑप्शन आपको देना है आप दे सकते हैं. देखिए 10 सेकंड तो खत्म भी हो चुके हैं. ओके, 67% गिव्स द राइट आंसर, दैट इज हैमलेट. ओके, तो देखते हैं विनर कौन है. निधि मैडम एंड ओके डन. या जिसका भी मींस भी दिया आंसर, दैट इज राइट. कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो इन दिस वे हम एक क्विज कॉन्टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडो. Means simple lecture can be make interactive, more attractive and more means student centric. So this is very good. NAC चालू है तो NAC में student centric method हमें दिखानी पड़ती है. तो these are the student centric method that with the help of this और ICT method बोल सकते हैं हम इसे. This is the final question I think. Rate today's lecture. हाँ बोला. Sir, Yes. can we create response sheet with respect to this, like Google form? Response sheet. हाँ.
Yeah, ma'am. Yeah. Okay, so where is the option there? 1 minute. Okay, after this, read today's lecture नंतर आपण पाहू आता. 1 minute. Existing this. Ma'am, if we are taking the license copy of this, that is the Slido, then it gives lot of options. Now look at this. First of all, the questions. So here is a question that is lock, open text locks, word cloud is lock. So why? Because the free trial version is finished. अगर आप इसे लाइसेंस कॉपी लेते हैं और लाइसेंस कॉपी बहुत मींस मिनिमम अमाउंट में है, अगर आप इसे लाइसेंस कॉपी लेते हैं परचेस करते हैं तो यू हैव मोर ऑप्शंस. आप डायरेक्टली वो स्प्रेडशीट डाउनलोड भी कर सकते हैं और स्प्रेडशीट डाउनलोड करने के बाद आप देख भी सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने किस टाइम में रिस्पॉन्स दिया है और कितने जल्दी रिस्पॉन्स दिया है. ये सब चीजें आप उस स्प्रेडशीट में देख सकते हैं. So I don't have the means license copy of this. I don't have means I have only the trial version of the Slido. Okay, madam. Okay, thank you, sir. Means after taking license only we can Yeah, able to yeah, yeah. complete that sheet. मैम नाउ मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्विज ऑप्शन है, सिर्फ ये क्विज ऑप्शन अभी लॉक नहीं है. बाकी रैंकिंग ऑप्शन, रेटिंग ऑप्शन, वर्ड क्लाउड, ओपन टेक्स्ट एंड मल्टीपल चॉइस, ऑल द ऑप्शंस आर लॉक बिकॉज ऑफ द ट्रायल वर्जन इज मीन्स जो ट्रायल वर्जन था वो फिनिश हो गया, उसका टाइमिंग जो था वो. सो दैट्स व्हाई दिस क्विज ऑप्शन इज ओनली ओपन. यू कैन कंडक्ट द क्विज विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडो. Now the next add-on is similar to this Slido, but more advanced than Slido. That is, this is called as a peer deck. सर इसके ऊपर अलग लेक्चर है एक कंप्लीट. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम. ठीक है. सर हॅलो. हाँ बोला. सर हे लायसन्स कॉपी घ्यायची असेल आपल्याला तर मग त्याला सबस्क्रिप्शन फी वगैरे किती आहे? सर याची आय थिंक म्हणजे तुम्ही slido.com वर जा आणि slido.com वर गेल्यानंतर आफ्टर गोइंग टू द slido.com तिथं काय ते देर आर ऑप्शंस. वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है. तो ऑप्शंस में से आपको मीन्स कंप्लीटली 1 ईयर के लिए लेना है तो वो भी ले सकते हैं, या 1 मंथ के लिए लेना है वो भी ले सकते हैं. तो देर आर मेनी ऑप्शंस. तो आप मीन्स आपके इंस्टीट्यूशन के हिसाब से या आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से आप परचेस कर सकते हो उसे. जैसे जूम होता है, जूम जैसे हम जूम प्लेटफॉर्म यूज Okay. करते हैं, लाइक दैट वो Okay, 1 sir. मंथ का भी हो सकता है आपका, 6 मंथ का भी हो सकता है रिगार्डिंग दैट. थँक्यू. ओके, स्लाइडो मध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल, इफ देर इज एनी प्रॉब्लेम देन प्लीज आस्क. Sir, I think there is no question. ओके मॅडम. One question from me. Yes, please. Sir, after preparing the Google Slides, after preparing the presentation in Google Slides, may I download it to show in offline mode? या सर, दिस इज द ऑप्शन. Please show You can it. download it. Yes, sir. This is the option for means download in Microsoft PPTX or ODP document, PDF document, plain text, JPG, PNG. In any format you can download it, sir. Okay. Thank you, sir.
Ma'am, can I move forward to docs? Yes, sir. Next application घेऊया. सर डॉक्स आणि साइट्स घेऊया ना आता 2 पर्यंत. ठीक आहे चालेल ma'am. येस. ओके. Okay. So this is another app of Google, that is Google Docs. This Docs is similar to the Microsoft Word. And here are again file, edit, view, insert, similar options. But this insert option again change. It is different from that Microsoft Word option, because here we can directly insert the images from computer and from the web. We can insert the tables without leaving the main document. This is drawing option again. This is chart option again. This is similar to the slide option. And the main means advantage of this all the apps is what? Here is a tab. It is present to meeting, and we have the tab again that we can collaborate with other with the same document, with the same slide, with the same form. Okay, so this is the main advantage of this. After that, in insert option, there are some special character you can insert, then equations, then header, footers. These are the simple options. Now, this add-on in Google Docs is for, look at this, this is extensive fonts. Again, we can insert the fonts with the help of this extensive fonts option and add on. लेकिन हम ये जो डॉक्यूमेंट या हम ये जो डॉक्स यूज कर रहे हैं, so this docs is basically used for, if I'm used for this writing a research paper or writing a research article. So अगर हम ये रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये भी चाहिए कि हम जो रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं या राइट कर रहे हैं, वो रिसर्च आर्टिकल प्लेगरिज्म जो होता है उसमें, वो हम किस तरह चेक करते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम सिंपल डॉक में काम कर रहे हैं तो वो रिसर्च आर्टिकल को लेना पड़ेगा, उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करके उस जो भी टर्न इन ऑप्शन जो मीन्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हमें डालना पड़ेगा, और वहां से वो प्लेगरिज्म हम चेक कर सकते हैं. बट इन गूगल डॉक्स हियर इज एन एड ऑन, जो कि विद द हेल्प ऑफ दिस एड ऑन हम डायरेक्टली प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं. लुक एट दिस इज अ प्लेगरिज्म चेक ऑप्शन, plagiarism.org. This is again add on. This is given by the Google. तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट क्लिक करता हूँ. स्टार्ट में क्लिक करने के बाद ये देखिए, दिस इज वन पेज. अगर है तो बाय मोर पेजेस, तो यहाँ पे हम बाय जो लिखा है मीन्स व्हाट, कि अगर एक पेज है तो वो करेगा, और एक ही पेज बैलेंस है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पेजेस यूज कर लिए, तो बैलेंस इज वन पेज ओनली. एंड बाय मोर पेजेस मीन्स व्हाट, देन आई हैव टू परचेज दिस plagiarismcheck.org. This is add-on. Okay, so with the help of this add-on, you can check the plagiarism online and without leaving this document. Now again there is another add-on, that is Plagium. This is check selection. जो भी हमने राइटिंग किया है, one minute, taking one document just for example. Stop share.
हम एक डॉक्यूमेंट लेते हैं जिसकी मदद से हम प्लेगरिज्म कैसे चेक होता है, जो भी हमने सेक्शन सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट करने के बाद इस तरह प्लेगरिज्म बताएगा, वो देखेंगे हम। Starting just for checking the तो हम एक ही सेंटेंस चेक कर ले अभी यहाँ पे। लुक एट दिस, मैंने सेंटेंस सिलेक्ट कर लिया है, चेक सिलेक्शन। तो चेक सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस देखिए सिलेक्शन चेक कर रहा है प्लेगरिज्म है या नहीं। प्लेगरिज्म हेल्प्स यू टू एंश्योर द ओरिजिनलिटी ऑफ द टेक्स्ट बाय डिटेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पॉसिबल प्लेगरिज्म्स। सो सर्चिंग चालू हो गई उसकी ऑन द नेट, चेकिंग। Look at this, checking 75%. Check the following 4 documents likely make use of the text that you। ये देखिए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये सेंटेंस 4 लाइनेक्स टेक्स्ट एडिटर टर्मिनल शेल यहाँ से है। Look at this is check from this। So means the following 4 documents likely make use of the text that you selected। इन 4 वेबसाइट्स ने या तो ये 4 जगह पे या ये 4 रिसर्च पेपर में हमने जो सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेजियम हम हमारे जो रिसर्च पेपर है या रिव्यू आर्टिकल हो या जो भी हो उसमें हम देख सकते हैं कि कितने % ऑफ प्लेगरिज्म है या नहीं है। सो लुक एट दिस, यहाँ पे सिमिलरिटी 100% दिख रहा है। देखिए एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, यहाँ 100% सिमिलर बोल रहा है। आफ्टर दैट नीचे भी 100%, सेकंड डॉक्यूमेंट में भी, थर्ड डॉक्यूमेंट में 81.3%, आफ्टर दैट फोर्थ डॉक्यूमेंट 70.8%। सो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस 4 जगह पे है और सेम तरीके से। सो विद द हेल्प ऑफ, तो आपको क्या करना है कि अगर आप जो सेंटेंस लिखा है उसे एक तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो आपको यहीं पे सिमिलर, इसका एक और एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे रेफरेंसेस मिल जाते हैं।
तो आप ये रेफरेंसेस भी दे सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, जो भी हमारा रिसर्च पेपर का जो भी पॉइंट है वो कहीं ना कहीं फ्लैश हो रहा है, तो आप वो रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेजियम सॉफ्टवेयर। इस प्लेजियम एड ऑन्स की मदद से हमें जो भी रिसर्च आर्टिकल लिखना है, हम हमारा रिसर्च आर्टिकल विदाउट प्लेगरिज्म लिख सकते हैं। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस एड ऑन, जो कि हमें हमारे आर्टिकल लिखने में बहुत काम में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज अगेन फॉन्ट। तो फॉन्ट तो हमने देखा है कि हम डिफरेंट फॉन्ट किस तरह यूज कर सकते हैं फॉर राइटिंग द documents. So these are the extensive fonts. This extensive fonts can also be used in this Google Docs, Google Slides, Google Forms. This is the fonts that we select. For example, this is change. It is and increase the font size, and you can visit change fonts. Okay. After that, again, here is the hypertext create. You can insert and edit the mathematical equations or any equation in your research paper or in research articles. Then icon flow slides. These are the icons and slides for docs. So these are the fonts you can insert, change and add-ons. So now this is called as a tools that it is very important tool, that is voice typing. We can, if you don't know the fast typing और हमें अगर टाइपिंग नहीं आती है फास्ट, तो हम विद द हेल्प ऑफ वॉइस कैन डायरेक्टली टाइप द डॉक्यूमेंट्स। सो नाउ किस तरह करेंगे देखेंगे हम वॉइस टाइपिंग। यहाँ पे हमें प्रेस करना है। नाउ एम्बेडेड सिस्टम इसे हम अलाउ कर देते हैं। नाउ एम्बेडेड सिस्टम नाउ is a combination of software and hardware. So देखिए, मैं बंद कर देता हूँ। So in this way, हमने अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है और हमें उसे हमारे तरीके से राइट करना है और हमें हमारी टाइपिंग इतनी फास्ट नहीं है, so with the help of this voice typing हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। So this is another tool that is used in Google Docs. This is very effective and important tool, that is voice typing. और हम इस डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स। सो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग भी हो सकता है। वर्ड काउंट कितने, रिव्यू, सजेशन, एडिट्स, देखिए इसके रिव्यू भी हम कर सकते हैं। सो these are the facility that given by Google's apps. तो जो Gmail के साथ हमें जितने ऐप्स आते हैं, उन ऐप्स में से हमने अभी तक गूगल फॉर्म, गूगल स्लाइड, गूगल डॉक्स कर लिया है। अभी हम देखते हैं गूगल साइट। तो गूगल साइट का मीन्स क्या महत्व है ये पहले देखेंगे हम। और सबसे पहले तो गूगल फॉर्म्स जो होते हैं, गूगल फॉर्म्स में मैंने एक एडवांटेज उसका ये बताया नहीं कि विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, जैसे अभी हम फिलहाल एवरी इंस्टीट्यूट फेसेस द नैक को ऑलरेडी किसी ने फेस कर चुका होगा या तो करने वाले हैं। तो नाउ द नैक इज नाउ ऑनलाइन हो चुका है पूरा, कि जो डीवीवी आता है, फिर डीवीवी में से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई करके हमें और अपडेट करना पड़ता है। और जो डीवीवी में जो हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो ऑलरेडी सब सॉफ्ट कॉपीज होती है। सो
With the help of this Google form, you can design your particular criteria. 7 क्राइटेरिया होते हैं, 7 क्राइटेरिया में से आप आपके तरफ जो भी क्राइटेरिया होगा उसके आप क्वेश्चनर्स बनाइए। क्वेश्चनर्स बनाने के बाद आप इजीली विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं और सेम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपके पास एक बार डेटा आ गया कि डेटा आने के बाद और उसके बाद आप अपलोड करके एक ऑप्शन रखिए जी कि सपोज कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो अटेंडेड, किसी ने पेपर प्रेजेंट किया तो पेपर्स के डॉक्यूमेंट जो सॉफ्ट कॉपी वो डायरेक्टली अपलोड करने का ऑप्शन भी रखिए वहाँ पे। और वो अगर अपलोड रखते हैं हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है कॉलेज का पूरे 5 सालों का। और आप एक बार डेटा आने के बाद हम उस डेटा के साथ उसको एनालिसिस करके हर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। बिकॉज कि अभी नैक तो ऑलरेडी डीवी भी पहले मांगता था, डीवी में हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही करने पड़ते हैं, दैट इज सॉफ्ट कॉपी। अभी हार्ड कॉपी देने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए इस तरह आप फॉर्म डिजाइन कीजिए कि वो फॉर्म डिजाइन करने के बाद आपके पास हर एक फैकल्टी का जो भी आपके क्राइटेरिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल फॉर्म। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द गूगल स्लाइड्स। फिर से हम इनबॉक्स में जाते हैं, मेल में जाने के बाद अगेन देयर इज अ 9 dots. We click on this 9 dots. Click on this 9 dots. After clicking on this is a Google Drive. इस Google Drive के ऊपर क्लिक करने के बाद now this is new option और new tab। और इस न्यू टैब में क्लिक करने के बाद देयर शुड बी द ऑप्शन मोर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, मोर के ऊपर क्लिक करना है गूगल साइट्स। So this is my Google slide। और एक ब्लैंक भी गूगल स्लाइड ले लेते हैं हम, क्रिएट फ्रॉम द स्क्रैच। अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेस है और वो रिसोर्सेस अगर हम हमारे स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। या तो गूगल क्लासरूम तो है ही, लेकिन हमारे पर्सनल कुछ रिसोर्सेस है जो सिर्फ अपने गूगल क्लासरूम के तक लिमिट ना करते हुए अगर हम डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर अगर डालते हैं हम तो उसका जो यूज है वो थ्रू आउट द वेब सभी को हो सकता है। तो गूगल क्लासरूम में डालने का ये मतलब होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज है हमें मीन्स हमने कोई आर्टिकल डिजाइन किया, हमारी कुछ पर्सनल पीपीटीज अगर है या हमने हमारा कोई यूट्यूब वीडियोस बनाया है तो वो जो वीडियोस होते हैं या वो जो भी होते हैं वो हम अगर गूगल क्लासरूम में डालते हैं तो ठीक है, वो क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के लिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन करते हैं और खुद की वेबसाइट डिजाइन करने के बाद उसके ऊपर अगर आप आपके कंटेंट्स, आपके रिसर्च पेपर्स, आपके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स होते हैं वो अगर आप इसके अपनी साइट के ऊपर अगर पब्लिश करते हैं या अपलोड करते हैं तो आपका जो व्यूवर्स है वो व्यूवर्स का जो जोन है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी लिमिटेड है। जैसे आपका कॉलेज ही लिमिटेड है अगर गूगल क्लासरूम में आप डालते हैं, लेकिन अगर आप साइट पे डालते हैं तो आपका व्यूवर जो है वो बढ़ जाएगा। और बढ़ने के बाद आपको बहुत सारे मीन्स सजेशंस भी आ सकते हैं या आपको बोलेंगे कि आप बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये गूगल साइट ये जो ऐप है विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप यू कैन इजीली डिजाइन योर ओन वेबसाइट। और वो किस तरह है तो देखिए यहाँ पे दिस इज पेज टाइटल। यहाँ पे आप पेज का टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी देता हूँ कि आईसीटी
हमने पेज का टाइटल दे दिए। नाउ दिस इज इंसर्ट ऑप्शन। इस इंसर्ट ऑप्शन में और यहाँ पे आपके साइट का नाम देना है, या आप लोगो भी डाल सकते हैं। तो सपोज मैं साइट का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। Giving this name, this is a text box. We can insert the text box. ये देखिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे इस आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आपके साइट के बारे में। आफ्टर दैट यू कैन इंसर्ट द इमेजेस। अगर यहाँ पे आपको इमेजेस इंसर्ट करनी है द फ्रंट पेज, या आपका ये होम पेज है, इस होम पेज के ऊपर अगर कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ड्राइव से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, या ड्राइव का यूआरएल दे सकते हैं आप। दीज आर द लेआउट्स। आपको कौन से लेआउट में चाहिए, ये लेआउट में आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे चाहिए तो ये वेबसाइट इस तरह आपकी दिखेंगी। ये देखिए यहाँ पे क्लिक टू एडिट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह का लेआउट आ गया। सो जैसे अगर मुझे लगता है कि भाई गूगल ऐप्स के बारे में मुझे लिखना है, 4 अगर गूगल ऐप्स है तो मैं डायरेक्टली इस 1 2 3 4 इस सेक्शन में जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्लिक एडिट टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ डॉक्स, फिर उसके बारे में बाद में लिखता हूँ मैं साइट, उसके बाद में लिखता हूँ स्लाइड, फॉर्म्स। तो दीज आर अबाउट द, और विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म ये टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट की साइज फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा इसकी फॉन्ट साइज जो है बढ़ा देता हूँ। ये देखिए हम फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं। एंड ये जो प्लस साइन है, इस प्लस साइन के ऊपर हम जब क्लिक करते हैं वी हैव द 4 ऑप्शंस। देखिए अपलोड, सिलेक्ट इमेज, फ्रॉम ड्राइव, यूट्यूब, कैलेंडर, मैप। दीज आर द ऑप्शन कि हमें यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज अपलोड करनी है, या कोई इमेज अपलोड करनी है, या अगर कोई अपलोड करना है तो वो फ्रॉम ड्राइव अपलोड करना है। दीज आर द ऑप्शंस। दैट इज यूट्यूब की लिंक देनी है, वीडियो अपलोड करना है। सो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, सो वी कैन इंसर्ट एनीथिंग। तो डायरेक्टली अभी उसके बाद कोलैप्सिबल टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है वो पूरा दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए ये भी है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं, इमेज कॉर्सल ऐड कर सकते हैं, बटन ऐड कर सकते हैं। बटन मीन्स व्हाट, कि अगर बटन मीन्स व्हाट, इट्स लाइक दिस। ये जो ब्लू कलर का पब्लिश लिखा हुआ है ये बटन ही है। अगर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं सो इट हमें वो कहीं और लेके जाता है। सो मीन्स व्हाट कि अगर मैं जैसे यूट्यूब का मेरा चैनल है, मैं उस यूट्यूब चैनल का लिंक वहां दे देता हूँ और कोई वहां आके क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली उस यूट्यूब चैनल के ऊपर चला जाएगा। नाउ पेजेस, जैसे अभी ये पहला पेज हुआ तो हमें अगर पेजेस इंसर्ट करने हैं, जैसे फर्स्ट पेज हो चुका है, दूसरा पेज इंसर्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू लिंक और न्यू पेज। तो हम न्यू पेज के ऊपर जाते हैं, न्यू पेज का नाम देते हैं। सपोज मैं अभी आईसीटी में पहला गूगल डॉक्स है तो गूगल डॉक्स की वहाँ पे इंफॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए। फर्स्ट पेज हो गया। और इस गूगल डॉक्स इस पेज के अंदर अगर कोई सब पेज अगर चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं। ओके, देखिए गूगल डॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये 3 डॉट्स के ऊपर। ये देखिए इसको गूगल डॉक्स को होम पेज बनाना है, या उसे डुप्लीकेट करना है, या प्रॉपर्टीज इसकी देखनी है, या ऐड सब पेज, यानी इसी में अगर दूसरा कोई पेज ऐड करना है तो चलो मैं दूसरा पेज इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। डिटेल
या तो गूगल डॉक्स के एड ऑन्स की इंफॉर्मेशन अगर मुझे देनी है तो गूगल डॉक्स में एड ऑन्स, तो डन। अब ये देखिए, जैसे ये पहला होम पेज हो चुका है, ये गूगल डॉक्स, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस एरो के ऊपर, ये देखिए एड ऑन आ गया। ये दूसरा पेज है एड ऑन, ये पहला गूगल डॉक्स और इस गूगल डॉक्स के अंदर दूसरा पेज है एड ऑन्स। तो ये देखिए यहाँ दिख रहा है गूगल डॉक्स मेन पेज, दिस इज सब पेज। सो इन दिस वे। और फिर थीम्स है, हमें कौन सी थीम चाहिए वो भी हमारे पास है। सिंपल थीम है, ये थीम है एरिस्टोटल थीम, दिस इज डिप्लोमेट थीम। So we have more options. और first thing is regarding this website designing is what, कि आपके पास एक तो सबसे पहले कंटेंट होना चाहिए और कंटेंट के बाद क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी ऑप्शंस बहुत सारे दिए हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में से आपको कौन से ऑप्शंस अच्छे लगते हैं और आपके साइट्स के लिए कौन से अच्छे, कि आपकी एजुकेशनल साइट है या कोई प्रोफेशनल साइट है या आप कुछ सपोज टेक्निकल साइट है कि टेक्निकल साइट की मदद से आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो रिगार्डिंग दैट यू कैन डिजाइन योर वेबसाइट्स। सो हियर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस और आप इन ऑप्शंस की मदद से साइट डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं मेरी वेबसाइट दिखाता हूँ आपको। मैंने एक सिंपल वेबसाइट डिजाइन की है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, फिर उसे एडिट करना है। लेकिन जो भी रिसोर्सेस है, जैसे वो रिसोर्सेस मैंने दिए है, सो this is the background pic, that is first page is that is about me, and in this that is मैंने अपना बायोडाटा दिया है, फिर क्या बेसिक थिंग्स है इन साइट्स में, that is basic electronic components with this। now वो जो बटन मैंने बोला था, this is insert button, so button means this is button, मैंने इंसर्ट किया और यहाँ पे मैंने लिंक दी है मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल की मैंने लिंक दी है। वो यूट्यूब चैनल जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद वो यूट्यूब चैनल मेरा आपको दिखेगा। उसके बाद मैंने ये ऐड किया है मैप, उसके बाद दिस इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वीडियो ऐड किया है मैंने यहाँ पे, दिस इज इंट्रोडक्शन टू पीएलसी देन दिस इज बेसिक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। सो दिस इज द फर्स्ट होम पेज। नाउ दिस इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पेज है ये, और द साइट का लोगो है, और ये जो टेक हेल्प करके साइट है, यहाँ पे मैंने मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है। तो दिस इज द नेक्स्ट ई रिसोर्सेज टैब में ई वीडियोज है, तो दिस आर द सब पेजेस। तो ये सब पेजेस, ये देखिए यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, दिस इज द ई वीडियो। लेकिन ये जो मीन्स ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज एडिटेबल व्यू, दिस इज नॉट द वेबसाइट व्यू। अगर आपको वेबसाइट व्यू देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज प्रीव्यू। प्रीव्यू में अगर जब मैं क्लिक करता हूँ, ये प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद आई हैव द ऑप्शंस, ये देखिए ये प्रीव्यू है और मुझे ऑप्शन है कि मुझे ये वेबसाइट को मोबाइल में देखना है या टैब में देखना है या लैपटॉप पे के ऊपर देखना है, दीज आर द ऑप्शन। तो सबसे पहले हम अभी जो है वो लैपटॉप का ऑप्शन है। अभी मैं होम पेज के ऊपर जाता हूँ, दिस इज द होम पेज, दिस, और ये होम पेज में इस तरह हमें दिखेगा। देखिए गूगल ऐप इंफॉर्मेशन, और हमें बैक टू एग्जिट प्रीव्यू, तो प्रीव्यू को एग्जिट भी करना है। तो चलो मैं आपको गूगल ऐप्स में क्या इंफॉर्मेशन लिखी है वो बता देता हूँ। दिस आर लुक, देखिए दिस इज गूगल साइट, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड एंड गूगल शीट्स। तो इस तरह है, और हम हरदम हमारी जो थीम है उस थीम को मैंने हमेशा चेंज किया हुआ है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को हमेशा मैंने चेंज किया है, दैट इज गूगल ऐप इंफॉर्मेशन का बैकग्राउंड अलग है, उसके बाद रिसोर्सेज का बैकग्राउंड अलग है। देखिए रिसोर्सेज इज द ये ई वीडियो, फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड अलग है। दिस इज नॉट वेरी टफ जॉब, ऐसा नहीं है कि आपको मीन्स ये बहुत टीडियस वर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे बहुत आराम से और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज
यहाँ पे सभी दिया हुआ है। देखिए आप डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, स्लाइड ऐड कर सकते हैं, शीट्स ऐड कर सकते हैं, फॉर्म ऐड कर सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग, सब चीजें यहाँ दी गई है। और मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल साइट्स जो अभी भी फिलहाल में बनी है, वो साइट्स गूगल साइट से ही मदद से बनी है। जब भी आप उसका यूआरएल ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये लिख के आएगा sites.google.com। तो sites.google.com मीन्स व्हाट, कि आप ये जो साइट है, ये साइट गूगल की मदद से बनी गई है। तो जो प्रोफेशनल साइट्स तो नहीं है, लेकिन जो एजुकेशनल साइट्स है या जो हमारे फ्रेटर्निटी के लोग जो है, टीचर्स फ्रेटर्निटी के, जो अपनी वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन डिजाइन। और हमें इसे पब्लिश किस तरह करना है, तो देखिए यहाँ पे ये पब्लिश का ऑप्शन है। जैसे हमने पूरे कंटेंट्स को एडिट कर लिया, सब कर लिया, और उसके बाद हमें इसे पब्लिश करना है, तो वी हैव दिस ऑप्शन, दैट इज आई एम क्लिकिंग ऑन दिस पब्लिश ऑप्शन। पब्लिश ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद, हाँ मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सो दैट्स वाई वो बोल रहा है कि देर इज नो अनपब्लिश ऑप्शन। तो सपोज मैं इसे प्लस माइनस कर देता हूँ कुछ, समथिंग। नाउ लुक एट दिस पब्लिश, मैं करता हूँ अभी। पब्लिश करने के बाद ये देखिए यहाँ ड्राफ्ट और करंटली पब्लिश, ऑलरेडी जो अभी पब्लिश्ड है वो ये है, और जो पब्लिश होने वाली दिस इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दिस इज ड्राफ्ट। सो वी हैव द टू ऑप्शंस, कि हम, हमारे पास दो ऑप्शंस है कि यही रखना है या ये जो अभी हमने एडिट किया है वो रखना है। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ पब्लिश, तो जो अभी एडिट किया है वो पब्लिश हो जाएगा, उसकी लिंक हमें आ जाएंगी। लुक एट दिस, दिस इज पब्लिश। मैंने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया है। ओके, सो नाउ अभी जो जिनके पास इसका यूआरएल है, लिंक है, उन्हें वो मिल जाएगी। तो नाउ दिस इज कॉपी पब्लिश साइट लिंक। अभी मैं ये इस लिंक को कॉपी करता हूँ। लुक एट दिस, दिस इज कॉपी लिंक। ये लिंक को कॉपी करने के बाद चैट बॉक्स में पेस्ट करता हूँ। देन सो आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, बिकॉज कि आप इसके ऊपर अगर कंटेंट देखते हैं तो ये कंटेंट इट इज सिमिलर टू द ब्लॉग, ब्लॉग के सिमिलर है, सिर्फ ब्लॉग में आप सिर्फ राइटिंग मीन्स करते हैं, बट इट हैज मोर ऑप्शंस एज कम्पेयर टू ब्लॉग। सो आप क्या, अगर आपके पास कंटेंट है और आपके पास क्रिएटिविटी अगर है, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिए और आपकी खुद की वेबसाइट डिजाइन कीजिए। आप एक काम कीजिए, अबाउट योर सेल्फ करके ही एक वेबसाइट डिजाइन कीजिए, वो एकदम सिंपल ऑप्शन है। अगर आप वो डिजाइन करते हैं, यस So, सर, उनको असाइनमेंट दिया if जाएगा ना anyone इसके has any ऊपर। problem regarding this website designing, then please ask. हेलो यस सर, किसी को कुछ पूछना मैडम, है? क्वेश्चंस? हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए इसका। यस One question from me. Actually, I am practicing the Google Docs. There, I can't find the voice typing menu. Voice typing option is I can't find in the toolbar. How can I find it? Sir, you go through this tools option. There is voice typing. Actually, in my computer, this option is not showing. Voice typing is showing. Sir, you just refresh your computer and Windows 7 or Windows 10. I am using Windows 10. There is no problem then. You update your, sir, means just refresh your computer. There is no, or refresh here, docs option. Reload this page. Okay, okay. This Right. is by default option, sir.
Okay, any other questions? फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए। सारे स्टेप्स आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं सर का रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हर चीज पे आपको रोज एक असाइनमेंट मैंने दिया है। जैसे आज का अगर आप मूडल में जाएंगे तो आज गूगल डॉक्स पे असाइनमेंट दिया है, प्लस मेरे भी रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पे है। तो आप देखिए, इतने एडवांस भी अगर आप नहीं आज ऐड कर पाते हैं तो बेसिक तो भी आपको समझ में आया होगा। सर ने भी बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है। तो आप वो असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं एक एक असाइनमेंट एक एक दिन दूंगी। आज गूगल डॉक्स पे असाइनमेंट दिया है मैंने। तो अभी आप अपने क्वेरीज क्लियर कर लीजिए इफ यू हैव एनी डाउट। और किसी को कुछ पूछना है? Am I audible? Yes, madam. Yes, yes. Okay. Yes, madam. Okay. So I think, sir, there are no questions. डॉक्टर गायकवाड़। Yes, हेलो yes, सर। sir. Yes, बोलिए सर। हाँ, या सर, हमने जो फ्लैगरिज्म देखा है, ठीक है ना, फ्लैगरिज्म चेकर, तो वो हम डॉक्यूमेंट को बेसिक चीजें उसको कर सकते हैं कि उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? अगर पूरे आर्टिकल्स हम करते हो ट्रायल बेसिस दिया है कि लाइसेंस कॉपी हमको लेना पड़ता है एडवांस में जो दिया है उन्होंने? हेलो। Yes, sir. Wait, हाँ, गायकवाड़ सर, प्लीज वेट। आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो फिर से ज्वाइन करेंगे। प्लीज वेट। फ्रेंड्स, सर ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज वेट। आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. You are audible. स्टेप्स नोट डाउन कर लिए हैं आप सब लोगों ने, जो भी एडवांस वगैरह सर ने बताया आज? बोलिए Yes, आप। बाकी लोग सबने स्टेप्स नोट डाउन कर लिए हैं? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यस, एक यस, टाइम। यस। Yes. तो ये इसीलिए मैंने भी असाइनमेंट्स भी जो दिए हैं वो एट ए टाइम नहीं है। आज सिर्फ गूगल डॉक्स पर ही असाइनमेंट है। तो आप एक एक ऐप को अच्छे से डिटेल में लीजिए, बिकॉज अपन ने एडवांस भी पढ़ा और बेसिक भी पढ़ा है। तो मैंने असाइनमेंट में बहुत बेसिक चीजें डालने के लिए बोली है। तो आप एक एक ऐप को अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए सीखने की कोशिश करिए, ठीक है? और वो जो सर्टिफाई एम का बोल रहे थे, वो अपन नेक्स्ट वीक सर का सेशन प्लान करते हैं। मतलब उसको ज्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटा वगैरह लगता है जनरली उसको। तो अपन उसको एक सेपरेट सेशन के इसमें लेंगे। ओके? Madam, excuse me. Ma'am, Yes. translate please, ma'am. Hello. Ma'am, translate please. Yes, I am saying, ma'am, regarding today's assignment. Today's assignment is on Google Docs. It's very Okay. simple. You can add simplified add-ons. You just try to add 1 or 2 add-ons in that, or you can make simple Google document related to our today's assignment I was saying. Okay, okay. Yes. Yes, Chauhan sir. Hello. आवाज येतोय सर? Hello. Hello.
यस सर, प्रीति यस मैडम, सर। हाँ सर, बोला। मैडम कल जो असाइनमेंट सबमिट किया था वो हुआ कि नहीं, हमें थोड़ा बताइए सर मैम। हुआ है। जिनका नहीं हुआ है ना, उनको मैं वैसे अपने ग्रुप में नाम डालूंगी। अभी मुझे चेक करना बाकी है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने सबमिट कर दिया है, और क्विजेस ओके सभी लोगों ने सबमिट कर दिए हैं। मैडम वो हुआ अच्छा, मतलब जो चाहिए था वैसा हुआ कि नहीं, वो थोड़ा बताना हमको कैसे यस हुआ सर, कि नहीं। यस सर। अभी देखिए, सब लोग ना कैसे सीखने के इसमें ना, लर्निंग इस फेज में है। तो एकदम हाँ बेस्ट तो अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ आप लोगों से। जितना आप लोग कर पाते हैं उतना करने की कोशिश करिए, और ओके कोर्स के बाद भी आप लोग उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अभी सर ने बहुत सारे एड ऑन्स बताए, बहुत सारे, और बहुत सारी नई चीजें मैंने भी सीखी आज, और आप लोगों ने भी सीखे होंगे। हाँ तो हाँ आज के एक दिन में तो इतना सीखना या तो करना पॉसिबल नहीं है। जितना आप कर सकते हैं, आज का जो मैंने जैसे असाइनमेंट दिया है गूगल डॉक्स का, हाँ तो उसमें बेसिक चीजें ऐड करने की कोशिश करिए, और कुछ एडिशनल अगर आप एड ऑन्स ऐड कर सकते हैं तो वो आप ऐड करने की कोशिश करिए हाँ। उसमें। एक्चुअली ये तो पूरा नया ही था अभी, जो यस, अभी आज के सर ने पूरे बताया बहुत। सेशंस, मतलब अपन बोलते कि गूगल एप्स है, लेकिन उसमें आज सर ने जो पार्ट कवर किया है, ऑल हाँ आर हाँ वेरी फंड, मतलब बहुत काम की चीजें थी, जहाँ पे भी हाँ, अपना काम की तो है, लेकिन उधर यस, हम कभी जाते नहीं ना, कभी यस, यस। किया नहीं ना अपन वो। गूगल फॉर्म बना लेते हैं सिंपल वाला, लेकिन उसकी जो एडिशनल चीजें है वो अपने को पता नहीं रहती है। तो आज हाँ सर ने हाँ बहुत अच्छे से कवर किया है। सर का और हाँ एक हाँ सेशन अपन रखेंगे, तो उस वक्त भी अगर आपको कुछ क्वेरी सॉल्व होती है आपकी, अगर मीन वाइल आपको कुछ दिक्कतें आती है, तो उस दिन भी अपन ओके डिस्कस कर सकते हैं। ओके ठीक है। चलिए। ओके, थैंक यू मैडम। ओके। गायकवाड़। यस, यस मैम पूजा एक मैम। forward first video, Kunal यस, sir's यस, video. यस, यस। टुडेज रिकॉर्डिंग ऑल्सो आई विल शेयर विथ एवरीवन। जैसे मैंने कल के सारे रिकॉर्डिंग भेजे हैं, आज के भी Okay. रिकॉर्डिंग्स में भेजूंगी, तो सारे स्टेप्स आपके पास रहेंगे। मतलब कोर्स के बाद भी आप लोग उसको अपने एंड में इन फ्यूचर ऑल्सो यू कैन डू ऑन योर ओन बाय लुकिंग एट द स्टेप्स एंड द वीडियोस। हाँ जी, okay. यस। Thank you. मैम एक गूगल फॉर्म के लिए एक माने हम लोग कैसे इसको मॉनिटर करेंगे, उस फीडबैक वाला वो सर्टिफिकेट वाला, वो भी एक सेशन चाहिए हम लोगों को। गूगल फॉर्म की सर्टिफिकेट, और गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म से हम लोग कैसे सर्टिफिकेट Yes, yes, भेजेंगे। that session. Yes, same session we are planning in the next week. बिकॉज आज बहुत हो जाएगा सर, अगर अपन कंटिन्यू करते हैं तो ये एक दिन में इतने सारे एप्लीकेशंस, बहुत ओवरडोज हो जाएगा वो। सो वी विल नो नो मैम, प्लान इन नेक्स्ट द सेशन इट विल बी। नेक्स्ट वीक वी विल प्लान, सो दैट फ्रेश माइंड से आप लोग क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, टीडीएस है वी कैन से। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो वो अपन एक सेपरेट सेशन करेंगे उसके ऊपर। ओके। ओके मैम। यस, यस। आई थिंक सर को ज्वाइन होने में कुछ दिक्कत आ रही है। सबके क्वेरीज सॉल्व हो गए थे, सिर्फ आई थिंक एक क्वेश्चन बाकी था, गायकवाड़ सर को कुछ पूछना था। नेक्स्ट इसमें पूछ लेंगे। जी सर, जी। तो वी विल स्टॉप फॉर द डे हियर। यू जस्ट टेक ब्रेक एंड गो थ्रू द रिकॉर्डेड वीडियोस जो मैंने मूडल साइट पे अपलोड किए हैं, एंड यू सॉल्व योर असाइनमेंट एंड टुडेज क्विजेस। एक ही क्विज दिया है वैसे मैंने, और एक असाइनमेंट दिया है। फाइन। ओके मैडम। ओके। और जिन्होंने फोटो थैंक यू मैडम। सबमिट नहीं किया होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिनका बाकी है, वो प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए। मैडम नेक्स्ट नहीं है क्या अभी नहीं सर, क्लास? आज के सेशंस यहीं पे खत्म होते हैं। ओके मैम। ओके। क्योंकि आज का आपका असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने के लिए टाइम देना था। कल का भी किसी का असाइनमेंट बाकी होगा तो वो लोग भी सबमिशन कर सकते हैं, वो मैं ओपन कर देती हूँ यस्टरडेज असाइनमेंट। ओके मैडम। ओके। ओके, थैंक सो कल Thank you, अपन madam. मिलेंगे। सी यू टुमारो एट मॉर्निंग 7:30। यू। ओके मैम। Ma'am, don't we have 2:30? थैंक यू। No, no, no. Today there is no session. Okay. Oh, okay, ma'am. Okay, we are supposed to do the assignment Yes, and you have to do your assignments. Yes, that's why I'm giving you time. okay, thank you. Yesterday is the assignment. Yes. Okay, okay. Okay. So Thank take you. your own time and submit your assignments, please. Okay, thank you. Okay. Thank Hello, you. madam. Yes, yes.
मॅडम ते कालचं असाइनमेंट आमचं राहिलं होतं थोडं. सर मी ओपन करून देते आता, सबमिट करून घ्या. ठीक आहे. मगाशी आम्ही पाहिलं होतं पण ते क्लोज हो झालं मी होतं. बरोबर आहे, कारण की ते कालचं असल्यामुळे ते आज दिसणार नाही. ज्यांचं राहिले हा. असेल मी त्यांना ओपन करून, क्विज ओपन नाही होणार सर, कारण की क्विजचा टाइम लिमिट होता. मी असाइनमेंट क्विज झालं आमचं ते. ओके, मी असाइनमेंट कालचं ओपन करून देते. ठीक आहे. ठीक तर आहे. आजचा दुपारचा वेळ आहे, तर तुम्ही दोन्ही असाइनमेंट आजचं पण आणि कालचं पण कंप्लीट करून टाका. ठीक आहे. ठीक आहे. ठीक है, ओके ओके, चलिए कल Ma'am, मिलते हैं. assignments are supposed to submit the same day itself, right? No? Yes, actually you have to submit on the same date, but by Okay. some or the other means you may missed it. Okay. Then I will open on, actually in coming Sunday I will open the whole assignments. Because it is given and unavailable, that's why I'm asking. Yes, now it is unavailable. I will open it because some participants have not submitted their assignment yesterday. Oh, Sunday you'll open it. Yes, yes. Thank you, ma'am. चलिए कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, good day. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.